Welcome friends, let us analyze the Code 17 Management paper of UGC NET for June 2021 attempt, which was held on 30th of November 2021. So guys, what we'll do today? So we'll look at two things. Number one, we'll analyze the paper of 2021. So what we'll understand in this analysis कि कट ऑफ कैसे जाता है, what is the difficulty level, हम 2021 वाले पेपर से क्या सीख सकते हैं, what is weightage of different topics in the paper, पेपर कितना मुश्किल है, कितना आसान है, 2021 वाले पेपर से हम जो सीख सकते हैं, how you can use those learnings in paper of 2022. Then if you want to look at the detailed question by question solution of entire paper of Management Code 17, we are publishing another video on YouTube. The link to that video is also given in the description given below. Finally, if you have anything which you want to discuss with us, you want to share with us, you want to agree with us, you want to disagree with us, there is also another link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and feel free whatever is on your mind. So we'll get started. सबसे पहली बात, so Code 17 Management की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, what should be our target score? हमें कितना नंबर हमें लेना है Code 17 Management के पेपर में? तो इस बात को समझने के लिए let us look at some of the previous cutoffs which are available with us. In December 18, the cutoff for JRF was 62%, which went up to 68% in June 19. So December 19 again 68%, June 20 68%, and now it has come down to 58% in June 2021. Okay, so cutoff will keep going and down. Now cutoff, so these are the cutoffs for JRF. For NET, obviously the cutoff will be approximately 6-7 percentage points lesser than the cutoff of JRF. That has been the trend. So what do we make out of it? So guys, first thing which we should keep in your mind that let us target a score of above 70. So let us target a safe score of above 70, and that will make sure that we get our JRF seat. So now that we agree with the fact कि हमारा score, हमारा plan है कि हमें 70 का score, 70%, 70% in both in paper 1 and paper 2, we have to target this score. So let us try to achieve this target based on कि 2021 वाले पेपर से क्या सीख सकते हैं और 2022 वाले पेपर में क्या करना है. Okay. So now we agree to this fact कि हमें 70% के आसपास हमें अपना score, we have to put up a score around that thing. So उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है? So guys, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि we have to start giving due respect to paper 1 of UGC NET. In paper 1, we have to target a score of around 40 out of 50. 40 out of 50, which will correspond to approximately 80% in paper 1. So I'll tell you कि usually हमारे साथ होता क्या है. So हम लोग मैनेजमेंट कोड 17 में पेपर देते हैं, एंड फॉर एग्जांपल माय कट ऑफ इज से 65%. ठीक है, 65% कट ऑफ आया, हमारा स्कोर कार्ड बाहर आया और हम फेल हो गए. ठीक है, फेल हो गए तो हम अपना स्कोर कार्ड देखते हैं कि हमने कितना मार्क्स आए हमारे पेपर 1, पेपर 2. सो गाइस, यूजुअली क्या होगा, पेपर 1 में विल पुट अप अ स्कोर ऑफ अराउंड 65%. पेपर 2 में हमारा स्कोर कितना आएगा, मे बी समवेयर बिटवीन 50 to 60%. ठीक है, तो पेपर 1 में 65 स्कोर का मतलब क्या है कि मेरे 50 में से 32, 33 करेक्ट हो गए. पेपर 2 का मतलब क्या है कि मेरे 100 में से 50 से 60 सवाल मेरे ठीक मैंने कर दिए. ओके, क्योंकि मेरा ओवरऑल कट ऑफ कितना है, 65%. ठीक है, पेपर 1 में मैंने क्या किया, 65%, पेपर 2 में 50 to 60, और हमें लगता है कि पेपर 1 में मैंने अच्छा किया है, पेपर 2 में मैं अच्छा नहीं कर पाया, इसलिए मैं पेपर 2 पे मेहनत करता हूं और अगले अटेम्प्ट में हम वी स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन पेपर 2 ओनली. लेकिन दिस इज आवर फर्स्ट मिस्टेक. फर्स्ट मिस्टेक इज कि अगर हमने पेपर 1 में 65% हमारा स्कोर आया है या एनीथिंग लेस देन दैट, इट इज नॉट अ गुड स्कोर. सबसे पहली बात हमें ये आप अपने दिमाग में बैठे, we should feel unhappy about it.
we have to target a score of around 80% in paper 1, which means हमारे पेपर 1 में अप्रोक्सीमेटली 40 सवाल 50 में से ठीक होने चाहिए। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम आपको ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप पेपर 2 में 60 से 70 करो, बजाय कि आप पेपर 1 में 30 से 40 करो या 35 से 40? उसके दो कारण हैं। पहला रीजन, अगर पेपर 1 में आपको टू गेट दैट वन इंक्रीमेंटल मार्क, अगर आपको पेपर 1 में x नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे या x एफर्ट लगेगा, इन पेपर 2 टू गेट दैट वन मार्क यू हैव टू स्टडी 3x आवर्स। सो ROI फॉर पेपर 1 इज हायर देन पेपर 2। पहला रीजन तो ये है। फॉर सेकंड रीजन, आई आस्क यू टू डू समथिंग, गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। एक बार आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाएंगे, you will see a lot of interviews, more than 200 interviews of different guys who have cleared UGC NET or JRF in last 10 years. तो आप इसमें से मैनेजमेंट वाले फिल्टर आउट कर लीजिए, ठीक है। अगेन यू विल सी लॉट ऑफ वीडियोस फॉर मैनेजमेंट ओनली, ठीक है। लेकिन आपको ये सारा तो आप देख नहीं पाओगे खैर, लेकिन आप इसमें से ना कुछ देखिए, 2, 4, 5, 10 आप देखिए एंड सी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। ऑब्वियसली दे विल स्पीक नाइस वर्ड्स अबाउट ह्यूमन पेरिटस, कुछ वो तारीफ करेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप देखो कि हर आदमी, ऑब्वियसली एवरीबडी विल वेरी इन देयर स्ट्रेटजी, लेकिन हर आदमी कंसिस्टेंटली आपको एक बात बोलेगा कि पेपर 1 पे ध्यान दीजिए, पेपर 1 में अच्छा स्कोर आप लेके आइए। सो गाइस, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस हम आपको एडवाइज कर रहे हैं कि आप पेपर 1 में अपना अच्छा स्कोर बिल्ड अप करने के लिए टुवर्ड्स दैट गोल यू हैव टू डू द वर्क। ऑब्वियसली पेपर 2 में आपको, पेपर 2 भी आपको पढ़ना ही है, यू हैव टू इंप्रूव स्कोर देयर एज वेल, बट लेट अस fill up all the gaps in paper 1 first and target our score of above or around 70% in total. Okay, आगे बढ़ते हैं। Okay, so guys, this is a scorecard of one of our students की जिस who was all India rank 1 in code 17 management, ठीक है। शिवम गोयल नाम है इसका, ठीक है। तो why we are showing you this scorecard? So he was with us in 2019. तो आप एक चीज देखिए कि पेपर 1 जो मतलब टॉपर का स्कोर क्या होता है, तो इन पेपर 2 आल्सो दिस पर्सन स्कोर्ड 100 परसेंटाइल, ठीक है, और ही स्कोर्ड 80% मार्क्स इन पेपर 2। so कट ऑफ आर अराउंड क्लोज टू लाइक लेट 60s या अराउंड 70s। जो हाईएस्ट मार्क वो भी 80 है। तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स हैं दे आर स्कोरिंग इन 90s और समथिंग। So the point which you want to make by showing you this scorecard is that paper 2 में beyond a point anyway people are not scoring 85 or 90। जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसका भी स्कोर 80 ही आया है। बट हाउ पीपल आर क्रैकिंग JRF, वो लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर 1 में दे आर मेकिंग श्योर दैट दे पुट अप अ गुड स्कोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। So who we are? I am from Human Peritus. We are specializing in management and commerce subject because we are specializing in management and commerce subject for last 10 years. So हम कुछ UGC NET के एग्जाम करते हैं, कोड 17 मैनेजमेंट, कोड 08 कॉमर्स, कोड 55 HRM, HR ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर इन PSUs. So this is where we advise our students. Then we also do a lot of UPSC recruitment exams like assistant labor commissioner, EPFO, ESIC, deputy director, admin officer, store officer, and so on. You can look at this list on our website. So broadly our introduction is that in management and commerce subjects we have emerged to be a trusted advisor over last 10 years, and you should really consider human peritus if you are targeting any exam in this area. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट। सो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन दिसंबर 19 टू जून 2020 पेपर, ठीक है। सो दिसंबर 19 में मार्केटिंग के 18 सवाल आए, जो जून 20 में 13 सवाल आए, ठीक है जी। FM के इसमें 17 आए, अगले में FM के 13 आए। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस के इसमें 4 आए, जो कि बढ़ के अगली बार हो गए 14। ओके, अब लेटेस्ट वाला पेपर देखते हैं कि जून 2020 से जून 2021 में क्या चेंज हुआ, जून 2020 से जून 2021 में क्या चेंज हुआ। ओके,
पहली बार मार्केटिंग के 13 आए तो अगली बार मार्केटिंग के 16 सवाल आए, यहाँ एचआरएम के 7 आए, यहाँ एचआरएम के 14 आए, यहाँ आईबी के 14 आए तो यहाँ आईबी के 10 सवाल आए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमआईएस के 10 आए जो कि घट के अगली बार 4 हो गए। सो गाइस इन सब पाई चार्ट से हमें क्या समझ में आता है? सो गाइस पहली बात जो हमें समझ लेनी है कि कोई भी टॉपिक ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द ओनली वे टू क्रैक यूजीसी नेट एंड गेट अ जेआरएफ सीट इन कोड 17 मैनेजमेंट इज दैट आपको अपना 100% सिलेबस करना है। सो यू हैव टू स्टॉप आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और हम लोग यूजुअली करते क्या है? सो लेट मी टेक यू टू यूट्यूब एंड शो यू समथिंग कि हम लोग जनरली क्यों करते हैं। एंड दिस इज द रीजन हम में से कुछ लोगों को अपना जेआरएफ या नेट निकालने में क्यों 3-3, 4-4 साल लग जा रहे हैं। हम लोग लगे रहते हैं अटेम्प्ट देते रहते हैं। तो आई विल टेल यू व्हाट मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग, जिसको 3-3, 4-4 साल लग जा रहा है। सो लेट मी गो टू यूट्यूब टू शो यू दैट। ठीक है, तो हम यूट्यूब चैनल पे आते हैं और यूट्यूब चैनल पे जाके हम लोग क्या करते हैं, लेट अस सर्च यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपका मन है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिया है। ओके, सो अब आपको क्या करना है? अब आपको छोटा सा एक एक्सरसाइज करना है। आप इसमें से कुछ भी वीडियोस उठा लीजिए। ठीक है, जैसे कि अब ये वाला वीडियो ले लीजिए आप, जो भी है, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी। ठीक है, सो इन्होंने बोला कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, या फिर आप कोई भी, मतलब जो भी आपका मन करे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और आप क्वेश्चन सर्च करोगे तो आपको वो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये, मतलब ये वाले सवाल आ गए। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर मैनेजमेंट एमसीक्यू और जेआरएफ 1000 कितने? हाँ 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, तो या फिर ये वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज क्या करना है कि ये वाला वीडियो, जैसे ये वाला वीडियो था, ये 1 साल पहले आया है, करेक्ट? या ये वाला वीडियो शायद 5 महीने पहले आया, ये पेपर से पहले आया होगा। आपको भी क्या करना है कि ये वाला वीडियो आप पूरा देखिए। अब यूजीसी नेट हुआ, राइट? 30 नवंबर को पेपर हुआ है मैनेजमेंट का, वो पेपर आपके पास है, करेक्ट? अगर नहीं है तो हमें ईमेल कर दीजिए, हमारी टीम आपको भेज देगी। अब आप उस वीडियो में देखिए, आपको ना एक एक कंपेयर कीजिए कि कितना सवाल है जो पेपर में एक्चुअली आया, जो लोगों ने कहा था कि वो इंपॉर्टेंट सवाल है, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप कंपेयर कर लीजिए। आप खुद से एनालिसिस कीजिए ये वाला, एंड देन मेक योर ओन डिसीजन कि क्या हम यूजीसी नेट के पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल गेस कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो उससे कितना सवाल मेरा ठीक हो रहा है। क्या उससे मेरा इतना सवाल ठीक हो जा रहा है कि मेरा नेट या जेआरएफ निकल जाएगा, जो भी मेरा टारगेट है। सो गाइस व्हाट इज आवर पॉइंट? हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 10 इयर्स, और इस 10 साल में हमने जो बात सीखा है कि यूजीसी नेट के पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल या इंपॉर्टेंट टॉपिक गेस कर पाना संभव नहीं है। ओनली वे टू क्रैक यूजीसी नेट पेपर इज कि मैं अपना 100% सिलेबस कर लेता हूं। दैट इज द ओनली वे टू डू इट। ये इंपॉर्टेंट सवाल या इंपॉर्टेंट टॉपिक सवाल थ्योरी कब काम करता है? आई विल टेल यू। जब हम सेमेस्टर के पेपर देते हैं और कॉलेज में हम लोग पेपर देते हैं, जो आपने बीकॉम, एमकॉम या एमबीए वगैरह आपने जो भी किया होगा, ठीक है, तो यू नो सेमेस्टर एग्जाम, जिसमें पीछे पेपर होगा, इसमें 9 सवाल होते हैं, 9 में से कोई 5 करने हैं, पहला सवाल कंपलसरी है, राइट? जब उस तरह का सब्जेक्टिव पेपर होता है, ना कि सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें आप इंपॉर्टेंट सवाल वाला थ्योरी काम करते हो। जिस पेपर में 100 एमसीक्यूज आने हैं आउट ऑफ एंटायर सिलेबस, उसमें आप इंपॉर्टेंट वाला थ्योरी आप कभी ला ही नहीं सकते। इट कैन नेवर वर्क। बट यूजुअली व्हाट इज हैपनिंग कि हम सभी लोग जस्ट बिकॉज वी वांट टू सेव सम टाइम, so we want to try to find out these, and then there is another glorified word, let's do smart study। कि एग्जाम निकालना तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, गधे की तरह मत पढ़िए। गधे की तरह नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस ही पूरा नहीं करना है। सो स्मार्ट स्टडी में जनरली लोग क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू कट डाउन ऑन थिंग्स, दे विल कट डाउन ऑन द सिलेबस, एंड दैट विल नॉट वर्क। सो अगर दैट विल नॉट वर्क, देन व्हाट विल वर्क? पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ाई करने का बड़ा ही आसान तरीका है, जैसे हम लोग पहली क्लास से स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए हैं। टेक आउट, प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस का हर एक कीवर्ड देखिए और उस कीवर्ड को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उस कीवर्ड की बाउंड्री बनाइए, देखिए उस कीवर्ड में क्या क्या चीजें हमें करना है। कहां से करना है? योर चॉइस। अपना
MBA का बुक्स ले लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, आप YouTube पे चले जाइए उस टॉपिक को समझने के लिए, हमारे साथ एनरोल हो जाइए, हमारा स्टडी मटेरियल आप पढ़ लीजिए, दैट इज योर चॉइस। लेकिन हर एक कीवर्ड को अच्छे से समझना है। सो stop studying from YouTube and stop finding important questions or important topics just because you want to save some time. That will not work. YouTube का यूज आप कर सकते हो, किस लिए कर सकते हो कि मेरा कीवर्ड है मेरा CAPM, ठीक है। अब मैं CAPM को पढ़ रहा हूं, लेकिन CAPM मुझे बुक से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं YouTube पे जाके आई कैन लुक एट सम नाइस वीडियोस की CAPM समझ लेता हूं कि CAPM क्या है। लेकिन अगर आप पूरे FM को कोई आपको बोल रहा है कि मैं पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पूरा बिजनेस फाइनेंस 2 घंटे में करा दूंगा, देन इट विल नॉट वर्क गाइस। पूरा एक छोटा टॉपिक लीजिए, पूरे FM का एक छोटा सा टॉपिक है जो शायद FM का 5% होगा, विच इज लाइक वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब वैल्यूएशन बॉन्ड को ही समझाने में कम से कम एक घंटे का क्लास लगता है। हम लोग वी टीच यू इन लाइव क्लासेस फॉर 4 months फॉर अप्रोक्सीमेटली 250 आवर्स, ठीक है। 250 में से पेपर 1 में हम लोग लगाते हैं अप्रोक्सीमेटली 70-80 आवर्स और पेपर 2 में हम लोग लगाते हैं 170-180 आवर्स। सो गाइस इतना समय लगता है एंड देन यू गेट दिस कॉन्फिडेंस की अब ठीक है, अब कोई भी सवाल आ जाए अब मैं कर लूंगा। नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस ऑफ 100% कवरेज ऑफ सिलेबस, और उसके बाद देखिए आपके लिए JRF कितना आसान हो जाएगा। सो इट विल टेक टाइम, शॉर्टकट कोई नहीं है। इट विल टेक मे बी 3 महीना 4 महीने लगेगा, 250 घंटे आप क्लास लगाओगे, फिर हम आपको कुछ बुक्स पढ़ने को बोलेंगे, फिर आपको कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करने को बोलेंगे, देन यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम। UGC नेट का पेपर इज नॉट डिफिकल्ट पेपर लाइक योर सिविल सर्विसेज, IIT या कौन सा जहां थोड़ा सोचने का नीड है, सिविल सर्विसेज, IIT या फिर कैट का पेपर होता है। नहीं, इट्स अ क्वाइट प्रेडिक्टेबल पेपर। अब आप लोग का हुआ है कि नहीं इसमें कुछ सवाल है जो पता नहीं कहां से उठ के आ गया है, उसकी बात भी कर लेते हैं। आई आल्सो डिस्कस दैट कि उन वाले सवाल का क्या करना है, ठीक है। सो गाइज come to traditional method of learning. There are no shortcuts. Stop looking for important questions, stop looking for important topics. अपना पूरा सिलेबस कीजिए, जहां से करना वहां से कीजिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो कीजिए। दैट इज द ओनली वे टू क्रैक UGC नेट इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोड 17। सो गाइज हम लोग एक चीज करते हैं कि हम लोग ना हर एक एग्जाम के बाद हम लोग एक एनालिसिस करते हैं कि अगर किसी ने सिर्फ हमारा कोर्स किया होता तो कितने सवाल हमारे कोर्स से आए। सो वट एवर वी टीच इन लाइव क्लासेस या जो हम आपको स्टडी मटेरियल में देते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में आपको करने को बोलेंगे, वो सब चीजें हैं। तो हम ये लोग एनालिसिस क्यों करते हैं? अपने आप को जज करने के। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो काम का भी है या नहीं, उसमें सवाल आ भी रहा है नहीं, हम ये वाला हम लोग एनालिसिस करते हैं। सो दिस नंबर वाज 70% इन नवंबर 17, फिर जुलाई 18 में 78 हुआ, फिर दिसंबर 18 में 90% हुआ, फिर कम होके 82% हो गया, फिर 87% हुआ, फिर 87% हुआ, और अब की बार ये नंबर 97% है। पहली बात, इससे नहीं समझना है कि 97% आ गया तो कुछ अब ये बस ये अगली बार ये नंबर 78% भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस रिस्पेक्ट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द पेपर, ठीक है। तो हमारा कोई आपको प्रॉमिस नहीं है कि इसमें से 90% आ जाएगा, नहीं, बट वट एवर प्रॉमिस इज कि यू विल डू बेटर देन अदर्स। एनीवे, तो मैं आपको ये वाला स्लाइड क्यों दिखा रहा हूं, व्हाई आई एम शोइंग दिस स्लाइड। सो गाइस यू विल सी कि कंसिस्टेंटली 85 to 90% कवरेज पिछले कुछ सालों में हमारा रहा है। अब हम लोगों को इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पता है, हम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं पता है, हम तो कोई क्रैश कोर्स भी नहीं करते। हमारे पास काफी बच्चे आते हैं एग्जाम से पहले कि मुझे कोई 1 महीना क्रैश कोर्स करा दो, तो हम उसको बोलते हो ही नहीं सकता। मतलब कैसे करा दे क्रैश कोर्स? अगर क्रैश कोर्स कराने का मतलब क्या है कि कम टाइम में कराओ, कम टाइम में कराने का मतलब क्या है कि कुछ चीजें नहीं पढ़ाओगे। तो वो डिसीजन हम लोग कैसे लें कि कुछ नहीं पढ़ाओगे जब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। तो सो गाइज हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि इतनी अच्छी कवरेज हमारे कोर्स में होती है, वो ये है कि हम आपको सब कुछ ही पढ़ाते हैं। जो सिलेबस में कीवर्ड दिया है, वी मेक श्योर दैट यू कवर 100% सिलेबस। सिर्फ ये ही अकेला कारण है कि हमारी इतनी अच्छी कवरेज है। हमारा कोई स्मार्टनेस नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हमारा विजडम नहीं है, कोई हमारे लोगों के पास NTA से पेपर लीक होके नहीं आता है, कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ एक ही कारण है,
हम लोग सिलेबस पूरा कराते हैं, हम लोग समय लेंगे, 3 महीना 4 महीना लगेगा, लेकिन उसके बाद यू विल हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आपको इसके अलावा कुछ और करने का नीड नहीं है। अगर आपको समझना है कि हाउ आवर प्रोग्राम इज, तो एक बार आप वेबसाइट पे चले जाइए, वहां आप जाके देख लीजिए, रीड थ्रू द डिटेल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट ये है कि अब हम में से कई लोग एग्जाम के बाहर आते हैं, बाहर आके हम लोग बोलते हैं कि पेपर, अब की बार पेपर काफी टफ था, अब की बार पेपर में ये कुछ नया नया बात आया, अब की बार रीजन असर्शन वाले सवाल थे, अब की बार वो वाले सवाल थे जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, फिर देन वी हैव टू चूज, और वो सब चीजें कुछ था। तो एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग, क्योंकि हमें वही वाला सवाल याद रहता है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में सवाल आते किस तरह हैं, एंड दिस इज अ कंसिस्टेंट ट्रेंड। आपके पेपर में अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 आसान सवाल आएंगे। आसान का मतलब है कि आप नहीं भी तैयारी करते हो, जस्ट बिकॉज आपने एमबीए किया तो आप कर दोगे उनको, ठीक है। आपके पेपर में अप्रोक्सीमेटली 80 टू 85 सवाल आएंगे एवरेज डिफिकल्टी लेवल के। एवरेज का डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है, कि ये जो चीजें पेपर में पूछी गई हैं ये ऑलमोस्ट हर एक रीजनेबली गुड बुक में होंगी। कोई भी आप बुक उठा लीजिए, कोई भी कंटेंट उठा लीजिए, उसमें ये होगा। जैसे कि कोई ऐसा एफएम का बुक नहीं है जिसमें सीएपीएम नहीं होगा, या कोई ऐसा मार्केटिंग का बुक नहीं है जिसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं होगा, करेक्ट। कोई ऐसा ऑपरेशंस का बुक नहीं है जिसमें क्यूइंग थ्योरी की बात नहीं करेगा वो, राइट। तो ये सब हर एक बुक में दिया होगा। तो इस सब को हम इसको लगाते हैं मॉडरेट कैटेगरी में। फिर आपके 5 से 10 सवाल आएंगे, 5 से 10 सवाल आएंगे जो टफ वाली कैटेगरी में होंगे। टफ में हमने 2 तरह के सवाल रखे हैं। एक तो कौन से, कि ऐसा सवाल जो यूजुअली बुक्स में नहीं होता है, जैसे कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और उसमें मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी तो हर बुक में होनी ही चाहिए, नहीं तो हमारी वो किताब ही बेकार है। लेकिन शायद शार्पे इंडेक्स मॉडल हर बुक में नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर शार्पे इंडेक्स मॉडल का सवाल आ गया तो हमने उसको टफ में मान लेते हैं। तो दिस इज द वन एग्जांपल। एक दूसरे तरह के सवाल टफ में हम किसको लेते हैं, कि ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ पेपर हैज इंप्रूव्ड ओवर द ईयर। पहले एग्जाम को यूजीसी करता था, फिर सीबीएसई आया तो पेपर का लेवल बेटर हुआ, अब एनटीए तो पेपर का लेवल और भी बेटर हो गया है। फिर भी देयर आर सम पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन। पुअरली फ्रेम्ड का मतलब क्या है, कि सवाल ही उठपटांग है, सवाल में ठीक से मिसप्रिंट है, या मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, या जो ऑप्शन एनटीए बोलता है वो करेक्ट है नहीं, दूसरे वाला करेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली बाद में एनटीए बात मानता भी कम है, अपनी गलती, आंसर की चैलेंज हम लोग करते रहते हैं पर वो मानते नहीं है, बट ठीक है। तो उनको भी हम टफ की कैटेगरी में ले रहे हैं कि वो ठीक नहीं कर सकता, मतलब बच्चा वो वाला सवाल ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। सो गाइस, हम लोग क्या करते हैं, हम पेपर से बाहर आते हैं और हमें लगता है कि हम ये वाले दिमाग में रहते हैं, ओ पेपर टफ था, हमें याद नहीं आया। लेकिन गाइस याद रखिए, आप पेपर में इसलिए फेल नहीं हुए कि आपको ये 5 से 10 नहीं आते थे, बल्कि आप पेपर में फेल इसलिए हुए हो कि यहां जो ये 90 सवाल हैं आप ये नहीं कर पाए, क्योंकि ये 5 से 10 तो किसी को भी नहीं आता है। Nobody is getting selected or rejected because of these 5-10 questions. By the way, इस 5 से 10 में भी आपके 2 से 3 तो ठीक होंगे, करेक्ट। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आप सब में बी मार्क कर दोगे तब भी 1/4 नंबर तो आएंगे आपके, राइट। तो 2 से 3 तो आपके इसमें से भी ठीक हो जाएंगे। तो कमिंग बैक, जो ये 90 सवाल हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा। एनीवे, मैंने आपको दिखाई दिया टॉपर का स्कोर कार्ड। ऐसा नहीं कि टॉपर भी कुछ 95% पेपर 2 में अपना नंबर लेके आ रहा है। So guys, what do we learn from this? 2 things. Number 1, कि पेपर यूजुअली सिलेबस के अंदर ही होता है। वो 5 से 10 सवाल होंगे उठपटांग जो हर बार ही होंगे, उसे आप नहीं रोक सकते। वो अगली बार भी होंगे, 2022 में होंगे, 2030 में भी होंगे, हमेशा ही होगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात क्या हम लोग सीखते हैं, हमें टफर की बात नहीं करना, हमें तो उस बात का अफसोस करना है कि जो 90 वाला था उसको मैं क्यों नहीं कर पाया। दैट इज द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप लोग क्या ठीक या क्या गलत कर रहे हो। फाइनली गाइज, एक बात और, कि पहले जो यूजीसी नेट था इट वाज मोर कीवर्ड बेस्ड। कीवर्ड बेस्ड का मतलब क्या है, कि कुछ कीवर्ड याद करो, उसका मतलब समझो, आराम से पेपर हो जाएगा। तो हम लोग, क्योंकि वी आर हियर फॉर 10 इयर्स नाउ, सो 2014-15 के दिनों में ऐसे ही होता था। कुछ की आप पेपर उठा के देखना पुराना, हमारे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, कोई पुराना पेपर उठा के देखना, कीवर्ड याद किया बस हो गया टाइप्स, ठीक है। छोटे छोटे सवाल होते थे। लेकिन अब
NT आने के बाद द पेपर हैज बिकम मोर कॉन्सेप्चुअल। अब आपको चीजों को समझना ही होगा। नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट, और इसलिए अब नाउ इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट कि आप जो 250 घंटे बैठ के एक एक करके चीजों को समझना है, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू। और इसलिए दिस इज अनदर रीजन व्हाई अब हमारे शॉर्टकट या ये सब चीजें अब तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। ओके, so my dear friends, that's all from my side for code 17 management analysis. And if you want to understand how you can prepare with human parameters, आप हमारा वेबसाइट पे चले जाइए, and basically we'll do 4 things for you. हम आपको लाइव क्लासेस में 4 महीना पढ़ाएंगे, फिर we'll give you some concise printed booklet जिससे आप सिलेबस पूरा करोगे, then you'll go through a online question bank, और फाइनली आपके मॉक टेस्ट पेपर होंगे। ये आसान नहीं है, इसमें 3 से 4 महीने का पूरा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार कर लोगे देन जिंदगी आसान हो जाएगा, एक ही अटेम्प्ट में आप पास कर पाओगे। सो आइडिया इज दैट यू कैन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अस फॉर 100% कवरेज। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी करने का नीड नहीं है, जो हम लोग कहेंगे बस उतना ही करना है। Again I'll repeat, if you have anything on your mind, you want to discuss anything, we have given a link we have given a link in the description below. Click on that link. आप हमारी टीम से WhatsApp से कनेक्ट हो जाएंगे, जो डिस्कस करना, जो भी आपके मन में बात कर लीजिए। You want to agree, disagree, whatever you want. If you want to understand कि what is program of human parameters for code 17 management, there is another link that will take you on our website about code 17 course. उसका अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। If you are interested, come and prepare with us, and all the best guys. Thank you.